Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School Kunti Nagar, Navata. Students, today I am going to discuss the postulates which is given by the Euclids and the some definitions, basic definitions of geometry, just such as ray, point, line segment, theorem, corollary, it's extra. Okay, so now first of all we see the postulates given by the Euclids. Students, there are 5 postulates given by the Euclids. Okay, so first number की a straight line may be drawn, a straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है एनी वन पॉइंट से एनी अदर पॉइंट तक. अगर कोई दो पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी, तो ये दोनों से होकर एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया जा सकता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. एंड द सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. जैसे एक टर्मिनेटेड लाइन, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में. जैसे इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, है ना, और इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब एक लाइन जो है वो टर्मिनेट हो गया, बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली. दोनों डायरेक्शन में से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. पोस्टुलेट नंबर 3 कि ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. एक सर्किल को ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस को लेकर. जैसे अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं O और इस पॉइंट में हम रेडियस मानते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई भी इंच में, मीटर में, जो भी, तो हम एक सर्किल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस को मानकर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सो ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. ओके, एंड द 4 नंबर, all right angles are equal to one another. all right angles, चाहे वो राइट एंगल कैसा भी क्यों ना हो, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सपोज दैट कि ए राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल एंड राइट एंगल. सभी राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री एंगल्स हैं. So all right angles are equal to one another. सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5. पोस्टुलेट नंबर 5 स्टेट दैट कि if a straight line falling on the two straight lines, if a straight line falling on the two straight lines, if a straight lines falling on the two straight lines AB and CD L. So if a straight line falling on the two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. सेम साइड्स का जो इंटीरियर एंगल्स होगा ये, और इसका जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर. अगर हम एक साथ ये दोनों एंगल्स को लेते हैं और ये दोनों एंगल्स का सम जो है लेस देन 2 राइट एंगल्स, और 2 राइट एंगल से कम हो, तो देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली मीट्स ऑन that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. It means कि a line L falling on the two straight lines AB and CD.
So makes the interior angles on the same side, interior angles x by. So if x plus y is less than two right angles, it means 180 degree. Two right angle, one right angle equal to 90 degree and two right angle equal to 180 degree. X plus y angle, x plus angle y is less than 180 degree. Then the produce this line indefinitely. So indefinitely meets on that side. So meets on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. अगर एक लाइन जो है वो दो स्ट्रेट लाइंस पे फॉल करता है, दोनों इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, इधर भी बन रहा है P एंड Q, बट इधर का जो एंगल्स है x प्लस y is less than 180 degree and P plus Q angle P plus angle Q is greater than 180 degree. वो जिधर less than 180 degree है two right angles, then उसी साइड में अगर हम इस दोनों साइड दोनों लाइन फिगमेंट्स को दोनों स्ट्रेट लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो दोनों जो है वो मीट कर जाएगा आगे जाकर, मीट्स ऑन दैट side on which the sum of the angles is less than two right angles. Clear? Students, after studying the axioms and postulates, B a study about the some useful definitions related to geometry. Okay, so first is theorem. What is theorem? Theorem is a statement that requires a proof. एक ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि स्टेटमेंट्स एक ऐसा सेंटेंस जिसे जज किया जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वैसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे. तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता पड़े, जैसे कि एग्जाम्पल से स्टेटमेंट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है इसके प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ेगी. तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है जैसे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. So these statements are called theorem. So a statements that requires a proof, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाता है क्या? थ्योरम. ओके, नेक्स्ट कोलोलरी. कोलोलरी इज a statement which क्लोलरी इज ए स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ, जिसका ट्रूथ जो है वो कैन इजिली बी डिडक्टेड फ्रॉम ए थ्योरम, जिसका प्रमाण जो है वो आसानी से थ्योरम से लिया जा सकता है, थ्योरम से मिल जाता है. तो वैसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कोलोलरी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ए पॉइंट हैज पोजीशन. ए पॉइंट हैज पोजीशन, ओनली पोजीशन. किसी भी चीज को लोकेट करना है तो एक पॉइंट के द्वारा लोकेट कर सकते हैं. तो ए पॉइंट हैज पोजीशन ओनली, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, नो थिकनेस, नो थिकनेस. सो ए पॉइंट इज ओनली ए प्लेन व्हाइट पेपर पे अगर हम एक डॉट मार दे तो दिस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट. सो
ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट, एक फाइन डॉट के द्वारा इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे P A R S, जैसे इस पॉइंट को हम लोग P लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, R, मतलब कैपिटल लेटर से हम पॉइंट को क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? सो द स्टेट पाथ्स बिटवीन द 2 points A and B, स्टेट पाथ बिटवीन द 2 points A and B is called the line segment AB. It is represented by AB. Okay, and the points A and B are the end points from the line segment AB. A point और B point को हम लोग क्या कहेंगे, end point है, line segment का एक end point है। The length of the line segment is fixed, definite length. Line segment is the part of a line. Line segment is the part of a line which has definite length. It has 2 end point and it is represented by AB. Okay, represented by AB. Ray. Next is ray. A line segment AB. A line segment AB when extended indefinitely in one direction, in one direction, केवल एक डायरेक्शन में अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को, अगर हम किसी लाइन सेगमेंट्स को एक डायरेक्शन में इंडेफिनेटली अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग कहते हैं उसे रे, रे ए बी। सो ए बी इज द रे, सो बी साइड में जो है इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए बी, इस टाइप से इट इज डिनोटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रे ए बी। ओके, इट हैज वन एंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ द रे ए बी इज indefinitely. So ray AB has one end point A, one end point A. A ray has no definite length. इसका definite length नहीं है क्योंकि इसको एक साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो लेंथ डिफिनिट ही हो सकता है। एंड ए रे कैन नॉट बी ड्रॉन, एक रे को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं आसानी से, तो इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड, इसे हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन पेपर पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लाइन। ए लाइन सेगमेंट्स ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस, अगर हम एक लाइन सेगमेंट्स ए बी को दोनों डायरेक्शंस में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये कहलाता है क्या, लाइन ए बी, लाइन ए बी। ए बी लाइन इज डिनोटेड बाई ए बी। ओके, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ए लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ, इसका डिफिनिट लेंथ भी नहीं होता है, फिक्स्ड लेंथ इसका नहीं है। A line cannot be drawn, it can simply be represented by on the plane of a paper, simply represented on the plane of a paper. Some important points. A line contains infinitely many points. एक लाइन में ढेर सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, बट हम लोग अगर हम ढेर सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर कर एक अरेंज करते हैं तो एक लाइन का निर्माण होता है। तो एक लाइन में ढेर सारे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, मेनी पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए लाइन। ओके, नेक्स्ट इज कि थ्रू ए गिवन पॉइंट इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट से होकर ढेर सारे लाइंस पास कर सकते हैं। जैसे
एक पॉइंट P है और P से होकर ढेर सारे लाइन पास कर सकते हैं, इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट. ओके. एंड थर्ड कि वन एंड ओनली वन लाइन, एक और केवल एक ही लाइन कैन बी ड्रॉन टू द पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A एंड B. अगर दो पॉइंट्स हमारे पास है A और B, तो ये दोनों पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज कोलिनियर पॉइंट्स. व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई इन ए सेम स्टेट लाइन्स. 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स अगर किसी सेम स्टेट लाइन्स में लाई कर रहा है तो ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. सच एज AB द लाइन P Q and R. A P Q R B are all points lie in a same straight lines. Then we say that the point A, P, Q, R, B are the collinear points. Okay, and 3 or X, Y and Z. For point X, Y and Z are not lie in a same straight lines. Then we say that कि X, Y, Z जो है that are non collinear points. एक ट्रायंगल्स का निर्माण जो होगा वो 3 नन कोलिनियर पॉइंट से होता है. ओके. नेक्स्ट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नेक्स्ट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन. 2 लाइन्स which had one common point. 2 lines having a common point. 2 lines having a common points are called intersecting lines. जैसे AB and CD are 2 lines. So one common point O. So these 2 lines are intersecting lines, and this point is called the point of intersection. Point of intersection. Okay. Next is the concurrent lines. 3 or more than 3 lines intersecting at the same point. 3 or more than 3 lines intersecting at the same points are said to be congruent lines. Okay. So 3 or more than 3 lines intersecting at the same point and then said to be congruent lines. So AB, CD, EF and point O. So the line AB, CD and EF intersect same point O. Then we say that the line AB, BC and AB, CD and EF are the concurrent lines.